girls should not ride the bike or drive the car because they are not a good rider comparatively to the boys because they they don't have control over their mind while driving or in kind of a very big situation. While if they see a truck, they become very nervous at that time. They try to move away from that big situation, but they can't because they don't have so much patience as boys have, and they can manage. They can't manage as boys can. Faculty members and my dear friends, for the topic cell phone in college for students, and I'm going to speak in favor of this topic. Yes, it is very much important for students having cell phone because nowadays cell phone is not merely for making and receiving calls. It does a lot of multitasking, such as finding the data about a particular topic, checking mails, because in 24 hours we spend about 6 to 7 hours in our college. So how can we be without a proper communication device? It is very much important because in today's life we can't just do without a communication device. So cell phone plays a vital role in making our life simpler and easier. Suppose if you are in college and one of your friend finds himself in deep trouble and seeks help of yours. And if you do not have the cell phone, and by the way if he calls you, then he finds himself in a real danger. So we must have cell phone. And also we can take an example of our college only. There are two buildings. Suppose somebody is sitting there and one is searching that person in that engineering building. It will be quite difficult for him to frequently come do up and down to this building, that building. And if he keeps a phone, then he can directly just send him a message on making a call that a particular faculty is calling you out. So in that way it will be beneficial. There are several other reasons for having cell phone for students in a college. Just because I am running short of time, that I cannot explain it more. Thank you. मेरे अकॉर्डिंग लव मैरिज होना चाहिए क्योंकि किसी भी पर्सन को बिना जाने और पहचाने कोई भी पर्सन कैसे मैरिज कर सकता है। लेकिन हमारा जो फ्यूचर रहा है, पहले का पास्ट टाइम रहा है, जो हम लोगों का बैकग्राउंड रहा है, एंशिएंट टाइम में क्या रहता था कि हम लोगों के जो पंडित लोग जाते थे, हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स जाते थे, तो वो लोग डिसाइड करते थे, जो पर्सन रहते थे शादी करने वाले, उन्हें मालूम ही नहीं रहता था किससे शादी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो लेकिन अब जो मॉडर्न आ गया, हम लोग में मॉडर्न जमाना आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को उसमें जानना चाहिए कि हम लोग ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा या हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग लव मैरिज बेटर है। वैसे लव मैरिज की बात अगर लव आफ्टर अरेंज हो तो ज़्यादा बेटर है, तो क्योंकि हम लोग भी ये फैमिली मेम्बर्स भी जो है एक्सेप्ट करेंगे, तो लव मैरिज मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया कंट्री की, तो मुंबई की बात करें, बेंगलोर की बात करें या फिर अपने भोपाल की बात करते हैं, तो नाउ डेज मोस्टली 50 और 60% ऐसा ही देखा जा रहा है कि लव मैरिज के केस ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन उसको ओवरकम करना चाहिए हमको और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि लव मैरिज बेटर है। थैंक यू। My topic is not about co-education. मुझे इसके केवल बोलना है। मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ कि co-education होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर हमें अगर यहाँ डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आगे हमें जब भी फैक्ट्री या कहीं मतलब ड्यूटी करनी पड़ती है तो वहाँ भी हमें लड़कियों के साथ मतलब ड्यूटी करना पड़ता है। तो अगर सभी समय से एजुकेशन खत्म हो तो वहाँ हम मतलब विदाउट हेजिटेशन काम कर सकते हैं। और हर जगह हमें मतलब क्या आती है कि लड़के लड़की जो होती है मतलब लड़के लड़की साथ में काम करना ही पड़ता है। पहले के ज़माने अलग थे कि लड़के लड़के अलग अलग इंडिविजुअल रहते थे, अब जो है स्कूल कॉलेज हर जगह जो है एक साथ लड़के लड़के बैठकर मतलब पढ़ते हैं। इस तरह की कोशिश में हम इसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक ये हमारे जो एडवांटेज हैं कि एक साथ मतलब वो होना चाहिए, दोनों के साथ मतलब पढ़ लिखना चाहिए। और इसका मतलब ये कर सकते हैं कि ये मतलब हमारे फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट है। थैंक यू। My dear friends,
मोशन। बेसिकली कॉलेज में देखा जाता है कि बच्चे क्लासेस कम अटेंड करते हैं और कैंटीन में बैठे गॉसिप करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या गार्डन में बैठे रहते हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और फालतू की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और सेलफोन का मिसयूज़ अधिक देखा जाता है। सेलफोन एक तरह से अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इससे पेरेंट्स को काफ़ी सेफ लगता है, क्योंकि पेरेंट्स को अगर कुछ इन्फॉर्म करना है अपने बच्चों को तो वो इसके थ्रू इजीली उन्हें कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं। बट लेकिन यही अगर बच्चे उसका मिसयूज़ करें इवन कॉलेज में, क्योंकि पेरेंट्स को तो यही लगता है कि बच्चे जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो यहाँ आके अपना मिसयूज़ कर रहे हैं फ़ोन का तो ये बहुत ही गलत होगा। और कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर टीचर क्लासेस में लेक्चर ले रहे हैं, बच्चे अगर बच्चों के पास उन्हीं टीचर्स का अगर फ़ोन नंबर है तो पीछे से कॉल करेंगे उन्हें, तो इससे टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है जो कि डिस्टर्ब किया जाता है। तो मेरे ख्याल से कि कैंपस में तो बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए सेलफोन। तो आई एम एंडिंग विद दिस। Good afternoon to everybody, faculties, judges, my dear friends. I'm Shivangi Dixit, yes, 4th sem, and my topic is Apna Sapna Mani Mani, and I am speaking against of this motion. वैसे तो यहाँ पर सभी पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ताकि उनका एक सेफ सिक्योर फ्यूचर हो जाए, उनका भी और उनके आगे आने वाली जनरेशन का भी। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। और लाइक अगर देखा जाए तो जो बाहर की लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक भोपाल में विवेकानंद लाइब्रेरी भी है, उसमें मोस्टली ओल्ड जनरेशन ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो अपना, कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वो लोग ओल्ड जनरेशन अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ही पढ़ते हैं। वो लोग जॉब भी कर रहे होते हैं पर उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाना होता है। कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी देखा जाता है जिनका सिलेक्शन होता है IITs एंड AIEEE एंड बाहर के कॉलेजेस में, वो भी उनमें से कुछ ही परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना नॉलेज बढ़ाना होता है। बाकी तो सारे पैसे कमाने के लिए, अरे IIT में सिलेक्शन हो गया अब तो अच्छा जॉब मिल जाएगा, सेफ सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा, माँ बाप खुश हो गए, यही होता है। वैसे तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट रखता है सबकी ज़िंदगी में, पर नॉलेज बढ़ाने के लिए और खुद का दिमाग रिकवर करने के लिए हमें पैसे से ज़्यादा नॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। एंड आई एम एग्री कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज भी बहुत कुछ होता है।